أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 سے 34 تک انشاءاللہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جو خواتین کی تعلیم کے لیے ابتدائی اور بنیادی آیات سمجھی جاتی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب سے پہلے پچھلی آیات میں ہم پڑھے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو ہمارے لیے نمونہ اور اسوے کے طور پر پیش کیا ہے۔ اب واضح بات ہے کہ جو لوگ آپ کے متعلقین میں سے ہیں وہ آپ کے رموز اور آپ کے امور سے زیادہ واقف ہیں عام لوگوں کی نسبت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چونکہ رحمت کے اور وحی کے اور حسن معاشرت کے گہوارے ہیں تو وہ بھی عام لوگوں کے لیے بطور نمونہ ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو تعلیمات عوام مسلمانوں کو دینی تھی ان کی ابتدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گھر سے کی، اور اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ یا نساء ہم پہلے پڑھائے ہیں، نساء جمع ہیں عورتوں کے لیے۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں۔ لستن، لیسا کا معنی ہم پہلے کئی دفعہ کرتے ہیں نہیں، تو لستن تم نہیں ہو۔ یہ چونکہ خواتین کے لیے سارے سیغے بولے جا رہے ہیں تو آخر میں جو ہے وہ نون نسوہ والا، جو ہم یہ گرامر کا سبق پڑھ رہے تھے تو جمع غائب کے جو سیغے تھے خواتین کے تو حاضر کے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے آخر میں نون آتا ہے، اور شاید یاد ہو تو جو گردان ہم نے لکھی تھی تو ان میں آخر میں جو سیغے مؤنث کے آتے ہیں جمع کے تو ان کے آخر میں نون، اور اس نون کو ہم نسوہ کہتے ہیں، نون نسوہ یعنی خواتین کے ساتھ۔ لستن تم نہیں ہو، کا احدن، کاف تشبیہ کا ہم پہلے بھی اس کو کئی دفعہ پڑھا، جیسا کہ، مانند کے، اور کا احدن کسی ایک کی طرح۔ احد کسی ایک کا یہ جو ہم معنی کریں نا کسی، یہ کیونکہ نکرہ ہے، احدن تنوین آئی ہے نا، نکرہ ہے تو نکرہ کا معنی عموم ہوتا ہے۔ لستن کا احدن، نہیں ہو تم کسی ایک کی طرح، من النساء عورتوں میں سے۔ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں میں سے کسی عام عورت کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو، اگر تم اتقیتن تم ساری کی ساری خواتین ڈرتی ہو اللہ تعالیٰ سے، تقوی اختیار کرتی ہو، تو تمہارا حقیقی تقوی کا انداز کون سا ہونا چاہیے؟ فلا تخضعن بالقول، فلا پسنا، تخضعن تم خضوع اختیار کرو۔ یہ ہم کہتے ہیں نا خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اسی سے خضع نرم جو ہے وہ انداز اختیار کرنا۔ فلا تخضعن بالقول، نہ نرم لہجے سے بات کرو۔ فلا تخضعن پس نہ تم نرم لہجہ اپناؤ، بالقول بات کرتے ہوئے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، فیطمع، طمع ہمارے یہاں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے لالچ۔ فیطمع الذی پس لالچ کرے، طمع کرے وہ شخص، فی قلبہ مرض جس کے دل میں بیماری۔ یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے ساتھ یہ بات کھل کر بیان فرما دی کہ جب تم
तुम अब आम औरतों की तरह नहीं हो, यानी तुम्हें बहुत ज़्यादा, जैसे अल्लाह ताला ने ये फजल अता किया है कि तुम्हें बीवियां बना दिया है नबी की, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम आला दर्जे का अखलाक जो है वो अपनाओ, और उस अखलाक का इजहार इस अंदाज में आपने करना है। और आखिर वाली बात भी पढ़ लीजिए, वकुलना कौलन मारूफा, वकुलना और तुम कहो, वो काला युकुल से कुल होता है ना, हम कहते हैं कुल या अय्युहन नबी, कुल कहो, कहो तुम, तो यहाँ पर नून वो निस्वा का आ गया, ऐत और तो तुम कहो, वकुलना और तुम कहो, कौलन बात, मारूफन अच्छी, यानी जब किसी मर्द से, जब किसी अजनबी से बात करने की जरूरत पड़े तो धीमे लहजे के साथ, और ऐसी गुफ्तगू जिससे किसी बीमार दिल वाले शख्स का लालच बढ़ जाए। अमूमन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने औरतों के अंदर ये चीज़ रखी है कि इनके अंदर लजाजत ज़रा पाई जाती है, जब बात करती हैं तो उसके अंदर मर्दों के लिए एक अट्रैक्शन होती है। अब जब खातून ऐसे अंदाज में गुफ्तगू करे कि जिसके अंदर वो लहजा, जिसके साथ मोहब्बत और उनस और लताफत जो है वो पाई जाती हो, वो ज़्यादा हो, तो आम मर्द जो कि आम जहनीत का हामिल हो, तो उसका लाजमी ये तकाजा है कि वो उसकी तरफ रुझान करेगा कि यहाँ से और भी कुछ जो है वो हासिल किया जा सकता है। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों को मुखातब करके कहा कि तुम्हारी बात किसी अगर मर्द से, अजनबी से करनी पड़े तो उसका अंदाज ये होना चाहिए कि फला तखज़ान बिलकौल, बात करते हुए उसके अंदर नरमी नहीं होनी चाहिए, इतनी इंतहाई लिजाजत नहीं होनी चाहिए। और फरमाया वकुलना कौलन मारूफा, बात कर सकते हैं, ये इंसानी ज़रूरत है, और हालात के साथ इंसान को बसा औकात किसी दूसरे मर्द से किसी खातून को बात करना पड़ सकती है, तो इंतहाई माकूल मुनासिब बात कीजिए जो उर्फ के मुताबिक हो, जिसके अंदर जो है वो किसी किस्म की कोई ऐसी इशारा या कोई ऐसी चीज़ ना पाई जाती हो जिससे किसी बीमार दिल वाले से मुराद यहाँ पर ऐसा शख्स है जिसके अंदर निफाक हो, जिसके अंदर जो है वो ऐसी चीज़ पाई जाती हो जो शहवानी चीज़ों को जो है वो ज़्यादा उभारती हो, तो ऐसी तुम बात करो जो कि इंतहाई उर्फ के मुताबिक हो, जिससे किसी किस्म का कोई मामला गलत साइड पर जाने की कोई तवक्को ना हो। पहली बात ये आ गई आज के इस दरस में, या ये वो इब्तिदाई अहकाम हैं जो पर्दे से पहले नाज़िल हुए, यानी पर्दे की इब्तिदा यहाँ से हो रही है। सबसे पहले क्या कहा कि तुमने ऐसी बात नहीं करनी है, पहली इब्तिदा बात से हुई, और बात करनी है तो आसान अंदाज में, अच्छे अंदाज में बात करें, लेकिन उसके अंदर ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए जो दूसरे को ललचाए। वकरना फी बुयूतिकुन, वकरना और करार पकड़ो, टिकी रहो, ठहरी रहो, फी बुयूतिकुन्ना अपने घरों में, तुम अपने घरों में रुकी रहो। ये या तो करना करार से है जिसका माना रुक जाना है, ठहर जाना है, और वकरना कर्ररा युकर्रिरु का मतलब तकरीर, यानी किसी चीज के साथ जो है वो चिमट जाना या ठहर जाना, इस माने में भी। वकरना और तुम ठहरी रहो, फी बुयूतिकुन्ना अपने घरों में, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, वला तबर्रजना, तबर्रुज ये अरबी जुबान में ये एक लफ्ज हमारे यहाँ आजकल मुस्तामल है, बुर्ज, ये टावर के लिए बोलते हैं बुर्ज, उसी से तबर्रुज है, नुमाया होना, उभरा हुआ होना, इजहार करना, किसी चीज का जो है वो नुमाया करना, इस तरह के मानों में जो है वो ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। वला तबर्रजना, वला तबर्रजना, और तुम खवातीन ना अपने आप को उभार कर चलो, वला तबर्रजना, तुम अपने आप को नुमाया ना करो, अपना आप दिखाती ना फिरो, और लोगों के सामने अपने आप को, बल्कि बाद मुफस्सिरीन ने इसका कहा बन ठन के ना हो, क्योंकि वो भी अपने आप का इजहार है। वला तबर्रजना, और तुम इजहार जीनत ना करो, तबर्रुजल जाहिलियत ऊला, वही पहली जाहिलियत वाली ठाठ बाट, और वही पहली जाहिलियत वाला तबर्रुज, या उस तरह जो है वो इजहार जीनत जो कि तुम जाहिलियत में करती थी, उस तरह का अब तुम ना करो। तो जैसा कि मैंने पहले भी गुजारिश की कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज को मुखातिब करके ये अहकाम इरशाद फरमाए हैं, और इब्तिदा चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से की है ताकि बाद में आने वाली किसी भी किस्म का
जो शख्स है वो इससे चक्कर में ना रहे जी ये तो वो तो बड़ी पाकबाज हस्तियां थी और उनका मामला और था, हमारा और है। नहीं, इब्तिदाई अल्लाह के रसूल के घर से की कि अगर उनके लिए ये ज़रूरी है तो बाद में आने वाला कितना भी अच्छा होगा वो उनसे बढ़कर नहीं हो सकता। लिहाजा ये सब के लिए अहकाम है, लेकिन अल्लाह ताला ने इब्तिदा जो है वहां से की और कहा घरों में ठहरी रहो। खवातीन का असल महवर उनका घर है, और जिस घर की खवातीन घर से ज्यादा बाहर पर तवज्जो दें वो घर ज्यादा देर आबाद नहीं रहते। लिहाजा असल जो उसूल है, जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का आर्डर है खवातीन के लिए, वह करना फी बुयूतिकुन्ना, और ठहरी रहो तुम अपने घरों में। एक चीज, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, और तुम जहालत वाला ज़िहारे जीनत ना करो। जैसी जीनत जाहिलियत में करती थी वैसी जो है वो ज़ेबो जीनत अब वो नहीं करनी है। और साथ ही फरमाया वाकिम नस्सला। अब ये जो पहली बातें आई हैं सारी की सारी, ये सारी मुआशरती रवैयों के साथ ताल्लुक़ रखती है। यानी बात करनी है तो कैसे करनी है, चलना है तो कैसे चलना है, तुम्हारा असल जो है वो हुदूद अरबा कौन सा है, वो मुआशरती रवैये जिक्र करने के बाद अब अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के जो हुकूक हैं उनकी अदायगी। वाकिम नस्सला, नमाज कायम करना, और तुम नमाज कायम करो। व आतीन ज़कात, और ज़कात अदा करो। व अतीअन अल्लाह, और अल्लाह की इताअत करो। व रसूलहू, और उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, यानी जो इबादत बुनियादी हैं वो बजा लाओ। और ये असल वो पीछे जो बात हमने पढ़ी है, इन तक़ैतुन्ना, तकवे का असल मेयार ये है कि तुम्हारी गुफ्तगू, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा चाल चलन वो भी इंतहाई पाकीज़ा, और उसके बाद अल्लाह के साथ ताल्लुक इंतहाई पाकीज़ा। उसकी बेहतरीन जो बुनियाद और असास है नमाज का क़याम, ज़कात की अदायगी, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत। अब ये सारे अहकाम क्यों दिए जा रहे हैं, सबब क्या है, वो भी अल्लाह ने जिक्र किया। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। इन्नमा, सिवाय इसके नहीं, बेशक, यकीनन, युरीदुल्लाहु, अरादा युरीदु, इरादा करता है, अल्लाह चाहता है, लियुज़हिबा, ताकि ले जाए, अज़हबा युज़हिबा, ले जाए, दूर कर दे, अनकुम, तुझसे, तुमसे, अर्रिज्सा, निजासत, अलीदगी को। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम चाहता है कि तुमसे जो निजासत है या रिज्स है उसको दूर कर दे, ए अहले बैत, अहलल बैती, ए अहले बैत। वयुतहिरकुम, और पाक कर दे तुमको, तहारत वाला कर दे तुमको, ततहीरन, आला दर्जे की सफाई और तहारत। तो अल्लाह तुमसे हर किस्म की निजासत को दूर करके आला किस्म का पाकीज़ा बतौर नमूना मुआशरों के लिए, कौमों के लिए, इंसानों के लिए बनाना चाहता है। इसलिए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने तुम्हें ये आर्डर दिया है, और उसका खुलासा ये है, तुम्हारा अखलाक, तुम्हारा किरदार, तुम्हारे मामलात, अल्लाह के साथ ताल्लुक आला दर्जे का होना चाहिए। और उसका तरीका ये, गोया कि अब दुनिया में आने वाला कोई भी इंसान अगर वो चाहता है, या ख़वातीन ख़ास तौर पर अगर चाहती हैं कि उनका ताल्लुक अल्लाह के साथ और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के हुक्मों के साथ आला तरीन हो, तो उनका तरीका ये है कि अपने वजूद की, अपनी इज्जत की, अपनी नामूस की हिफाजत का वो तरीका अख्तियार करें जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने दिया है। बात किसी अजनबी मर्द से नहीं करना है, अगर करना है तो ऐसे अंदाज में तो उसके अंदर किसी किस्म की लजाजत ना हो। और फिर उसके बाद अपने घर में रुक के रहना, बिला वजह बाजारों का रुख करना, बिला वजह अपने घरों से बाहर निकलना, ये मोमिना ख़वातीन की निशानी नहीं है। बहस्बे ज़रूरत या बवक्त ज़रूरत जो है वो जाने में कोई हर्ज नहीं है, उसकी बेशुमार और मिसालें मौजूद हैं। बहरहाल उसूल ये अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया कि असल तरीका ये है। और फिर ये जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, ए अहले बैत, ए घर वालों, ए नबी के घर वालों, अल्लाह तुम्हें ये आर्डर देकर तुम्हें जो है मुशक्कत में डालना नहीं चाहता, और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इसकी वजह से तुम्हें कोई तंगी में नहीं डालना चाहता, बल्कि अल्लाह ये चाहता है कि तुम्हारी ततहीर हो जाए, इंतहाई पाकीज़ा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तुम्हें देखना चाहता है। क्योंकि तुम्हारे बाद नस्ल दर नस्ल आने वाले लोग, उन्होंने तुम्हें फॉलो करना है, इसलिए इब्तिदा तुम्हारी ततहीर से, ताकि आने वाली नस्लें जो है वो
पाकीज़ा और साफ सुथरी हों। और यहाँ पर अब पिछली आयत आपने लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ ली है, तो अहलल बैत से मुराद फिर कौन है? पिछली आयतें आप पढ़ा है ना, इब्तिदा कहाँ से? या निसा नबी, नबी की बीवियों से अल्लाह ताला ने इब्तिदा करके कहा है कि तुम जो है तुम्हारे साथ ये मामलात हैं, और उन्हीं के लिए अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह तुमसे निजासत को, रिजस को अल्लाह पाक करना चाहता है। तो अहले बैत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां और आपकी औलाद है। तो अहले बैत, अब ये कुरान मजीद है आपके सामने है, और एक एक लफ्ज का तर्जुमा आप अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो आप समझ गए हैं सारा अरबी जुबान को, कि अहले बैत से मुराद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियां। अब इसका सियाक और सबाक इन आयात का ये बिल्कुल खुलकर वादे है कि इससे मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं। अब बहुत सारे लोग जो है वो अहले बैत में को जो है वो सिर्फ सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदा फातिमा, सैयदना अली, हसन और हुसैन और ये अहले बैत हैं, और उसके अलावा बस नहीं है, ऐसे नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी बीवियां अहले बैत हैं, और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उनको ये शर्फ अता फरमाया है कि वो कायनात के अंदर आला तरीन हस्तियां हैं, जिनको अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने बराह रास्त मुखातब किया और उनसे तत्हीर का जो है वो मामला फरमाया। और आखिरी बात, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा इन्नल्लाहा काना लतीफन खबीरा। वज़कुरना, ज़करा यज़कुरु, जिक्र करना, बयान करना। वज़कुरना, और तुम बयान करो, एक माना। और वज़कुरना, और तुम याद रखो। तज़कीर याद का भी होता है ना, वज़कुरना और तुम याद करो, दोनों माने हो सकते हैं। याद करो तुम, मा युतला, जो पढ़ी जाती हैं, तला यतलू, तिलावत उसी से है, मा युतला, जो पढ़ी जाती हैं, फी बुयूतिकुन्ना, तुम्हारे घरों में, मिन आयातिल्लाह, अल्लाह की आयात से, वल हिकमती, और हिकमत से। तुम याद रखो वो चीज़ें जो तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती हैं, अल्लाह की आयात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हिकमत, उनको महफूज रखना, याद रखना, क्योंकि बहुत सारी मुआशरत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो घर में होती हैं, वो आम लोगों को कैसे पता चलेगी जब तुम याद नहीं रखोगी। ये तो याद करना, अगर लफ्ज़ वज़कुर का माना याद करना, और वज़कुरना, और जिक्र करो, बयान करो, यानी घर में जो आयात अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हो, या नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात हिकमत की बयान फरमाए, और ये हकीकत में सुन्नत मुताहरा है। इस हिकमत से मुराद यानी अल्लाह का कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा जो तुम्हारे पास आए, तो वो लोग तुम लोगों को बयान भी करो और बताओ भी, और जो तुम्हारे साथ ताल्लुक वाली खवातीन और जो है वो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, उनको ये बयान भी करो, ताकि लोगों तक अल्लाह का पैगाम और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानगी जिंदगी है वो भी लोगों के पास आ जाए, क्योंकि बाद में आने वाले लोगों को इसकी ज़रूरत है। हमने अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जो है वो नबी को बतौर नमूना पेश किया है। अगर तुम ये हिकमत और ये चीज़ें जो तुम्हारे साथ खास हैं, जो खानगी मामलात के साथ हैं, वो बयान नहीं करेंगे, तो ये फिर बहुत सारा वो जो उसवा की बहुत सारी चीज़ें रह जाएगी। लिहाजा वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाह, अल्लाह की आयात जो तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती हैं। और ये भी शर्फ है उन खवातीन के लिए जो नबी की बीवियां हैं, कि अल्लाह ने उनके घरों में अल्लाह ताला की बराह रास्त वही उनके घरों में नाजिल होती थी। और सबसे बढ़कर इस शर्फ का जो हामिल है वो सईदा आयशा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वारदा, सिद्दीक़ा, वो सबसे ज्यादा इस बात की मुस्तहिक़। क्यों? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी भी खातून के यहाँ जब आप सल्लम उसके बिस्तर में होते तो वही नहीं आती इल्ला कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बिस्तर पर वही नाज़िल हुई। तो वो बहुत ज्यादा अहमियत और पाकीज़गी और तहारत की हामिल हैं। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम, और यही वजह है उम्महातुल मोमिनीन ने कोई भी चीज छुपाई नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उमूर खानगी जो हैं वो सारे खोल कर बयान कर दिए हैं, क्योंकि अल्लाह का आर्डर ये है, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाह, अल्लाह की आयात जो तुम्हारे घरों में नाजिल होती हैं, पढ़ी जाती हैं, उनको तुम बयान करो। वल हिकमा, और हिकमत भी जो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तुम तक पहुंची है, वो भी बयान करो। इन्नल्लाह काना लतीफन खबीरा, बेशक अल्लाह है इंतहाई लतीफ और बहुत ज्यादा खबीर। लतीफ ऐसी चीज को कहते हैं जो इंतहाई मुलायम हो, लतीफ। और अल्लाह लतीफ है, यानी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इंतहाई छोटी से छोटी चीज को भी जानता भी है और उसके बारे में
उसकी सारी दस्तरस भी है, लेकिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम जो है ये नहीं है कि वो बाज़ चीज़ों को जानता है और बाज़ को नहीं, वो लतीफ़ है और खबीर है, खबर भी रखता है। तो इंतहाई जो है लताफत के साथ और इंतहाई बारीक बीनी से जो है मामलात की छानबीन करता है। तो तुम्हारे एक एक अमल से वो वाकिफ है, खबरदार है, और वो चीज़ें जो आम लोगों के सामने जाहिर नहीं होती हैं, वो लतीफ़ होने की वजह से एक एक चीज़ से जो है वो बखूबी वाकिफ है। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इन आयात के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर से इब्तिदा फरमाई कि ख़वातीन का रवैया कैसा होना चाहिए और उनका तर्ज ज़िंदगी क्या होना चाहिए, उनका हुदूद अरबा क्या होना चाहिए और उसके अंदर रह कर उन्हें क्या करना चाहिए। तो बुनियादी चीज़ तो किसी भी किस्म के अजनबी मर्द के साथ इख्तिलात मुनासिब नहीं है, जैसा कि कुरान की आयत से वाज़ेह है। और अगर बवक्त ज़रूरत बात करना पड़े तो खातून इंतहाई जो है वो ऐसे लहजे में बात करे जिससे ना तो शास्तगी का दामन छूटे और ना ही जो है वो उससे किसी के दिल में ये आए कि यहाँ से कोई और भी काम निकाला जा सकता है। और दूसरा, घरों के अंदर रहें, बिला वजह बाहर जाना और ख़ास तौर पर बनाओ सिंगार को जाहिर करना, बन ठन के बाहर निकलना, इसको अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने मना फरमा दिया। तो और इसी तरह जो है वो फिर अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ का तरीका, नमाज का क़याम, ज़कात की अदायगी, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये सारा कुछ का असल मकसूद इंसानी मुआशरे की तत्हीर और पाकीज़गी है, ताकि कहीं भी जो है वो फसाद ना फैले और कहीं से भी जो है वो कोई ऐसे रवैये ना उभर कर सामने आए जिससे मुआशरती खराबियां जो है वो जन्म लें। उसका बेहतरीन तरीका ये है, अगर मुआशरती खराबियों से बचना चाहते हो तो ये अंदाज इख्तियार करो। और याद रखो, जो भी तुम्हारे पास इल्म अच्छा हो वो दूसरों के सामने बयान करो, ताकि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तरफ से आई हुई तालीम आम हो। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमारे घरों को ऐसे बना दे जैसे अल्लाह जिनको पसंद फरमाता है। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, अल्लाह उनको अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। और अल्लाह घर के जो ज़िम्मेदार हैं उनको ये तौफीक दे कि वो अल्लाह के हुक्मों को कमा हक़ हो नाफिज करें, और कहीं कोताही हो तो अपनी भरपूर कोशिश के साथ उस कोताही को ख़त्म करें। अल्लाह जुल वल इकराम हमसे राज़ी हो जाए, और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।